Hello, am I audible? Yes, yes, sir. Okay. So first of all, I welcome all of you in this lecture. So good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Okay, I hope you have gone through my yesterday's lecture that is based on limit point and interior point. Okay, now let me present my screen to you. Yes, please let me know, can you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So our today's goal is, in today's lecture we are going to see this very interesting property of real number, that is nothing but the Hausdorff property. Okay, we have already seen the statement of this result in my previous lecture. Let us recall it once again. So theorem, any two distinct real number have disjoint neighborhoods. Okay, and in my last lecture I ask you to understand this statement. So please let me know, have you understood this statement? Yes, have you understood this statement? No, sir. Okay, first of all, tell me, what do we mean by disjoint set? Yes. Suppose I am having two non-empty sets. Let A and B. A and B be any two non-empty sets. Now, when I will say these two sets are disjoint, any guesses? When the components of A sets are not the components of B set. Which means what? uh, A complement is A complement, B complement, kind of. A intersection B is equals to a null set. A intersection B is equals to a null set, or you can say their intersection is empty. Okay, that means these two sets A and B are disjoint. Is it clear what do we mean by two disjoint set? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this is all about disjoint set. Now in my statement we are having two disjoint neighborhoods. Okay, तो अब हम इस सेट्स को रिप्लेस करेंगे using neighborhoods. Okay, now I am considering say 2 points P1 of some epsilon 1 neighborhood, and I am considering another neighborhood. Or let me explain that statement directly. You consider a real line. Okay, now let me show you the statement once again. Yes. So the statement is, any two distinct real numbers have disjoint neighborhoods. This is our statement. Now what do we mean by distinct real number? Yes. Di- Yes. What do we mean by distinct real numbers? Anyone? Yes, quickly tell me. This is so simple. What do we mean by distinct real numbers? Yes, Bhumi Vadhu, do you want to say?
different. Yes, Unnati. So distinct real number means different real numbers. So now I am picking two distinct real numbers. So let A and B, let A comma B be two distinct real numbers. Okay, and these two real numbers are distinct. Okay, now suppose here I am having my this point A and here I am having a point B. According to our Hausdorff property, any two distinct real numbers having disjoint neighborhoods, which means what? आप ऑलवेज ए के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड फाइंड आउट कर सकते हो. सिमिलरली आप बी के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड फाइंड आउट कर सकते हो such that the intersection of these two neighborhoods are empty sets. Okay, suppose this is neighborhood of length say epsilon 1 and this is of length say epsilon 2. So here we are having neighborhood around point A of length epsilon 1 and here I am having neighborhood around point B of length epsilon 2 and we are having these two, the intersection of these two neighborhoods are nothing but the empty set. That is the meaning of they are having disjoint neighborhoods. Is the statement clear? Yes, sir. Okay. So this is our statement. Whenever you are going to pick any two distinct real number and if you want to calculate the neighborhood around it, then their neighborhood are nothing but the disjoint neighborhoods. And this is true for every real number, no matter how small it is or how close it is. For example, मान लो कि A point हमारा यहाँ पर होगा and B point हमारा बहुत close होगा to this point B, point A. तो हम always ऐसा neighborhood find out कर सकते हैं around both the points such that their intersection is empty set. ओके तो ये पॉइंट भले भी कितने ही क्लोज क्यों ना हो हम ऑलवेज एक ऐसा नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे दोनों के अराउंड सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट. दिस इज द यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर known as Hausdorff property. Is the statement clear? Yes, sir. Yes, sure. Okay. Yes, sir. Now let us try to see the proof of it. Okay, now let A comma B be any two real numbers such that both are not same. That is A is not equals to B, which means these two real numbers are distinct. So if they are distinct, then what can I say about their modulus? Yes, see here I am taking A and B are two distinct real number. That means A is not same as B. So if A is not same as B, then what can I say about their modulus? What can I say about mod of A minus B? Positive real number. This modulus is always bigger than 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सी मॉडुलस में आप कोई भी रियल नंबर डालो आपको उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी दैट इज बिगर देन 0. और यहाँ पे हमने क्या बोला हमने यहाँ पे बोला a इज नॉट इक्वल्स टू b मीन्स ये दोनों नंबर सेम नहीं है विच मीन्स व्हाट इनके सब्ट्रैक्शन का आंसर कुछ तो मिलेगा हमें आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और मॉडुलस लेने के बाद वो जो भी आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा.
Hence, we can say that this modulus value is always bigger than 0. ओके तो ये बिगर देन 0 बनेगा तो हम इसे एक कोई भी रियल नंबर मानेंगे. लेट अस कॉल इट एज r. ओके नाउ हियर दिस r वर्क्स एज एप्सिलॉन. ओके हम एप्सिलॉन नोटेशन ना यूज करके हम अब नोटेशन यूज करेंगे r denoting the distance between these 2 points. Okay, so let r is equals to mod of a minus b. Since a is not equals to b, r is equals to mod a minus mod b, which is always bigger than 0. Now tell me, if r is bigger than 0, then what can I say about r by 3? It will also be bigger than 0. So r by 3 is also bigger than 0. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No, sir. Okay. Now let's move on the next one. That is, now you consider two neighborhoods. Remember, our aim is to show they are having disjoint neighborhoods. So disjoint neighborhoods के लिए पहले तो हमें neighborhoods consider करने पड़ेंगे around point A and around point B. So let us consider two neighborhoods of A and B given by n of A comma r by 3 and n of b comma r by 3. Okay, this is nothing but the neighborhood around point A of length r by 3. This is the neighborhood around point B of length r by 3. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now what we want to prove, we will prove that their intersection is empty set. That is, the intersection of these two neighborhoods is an empty set. This we want to prove. अब empty set दिखाना है means what? इन दोनों के बीच में कोई भी common element present नहीं होना चाहिए. Is it or not? Yes, sir. So अब हम इसे prove करेंगे using the method of contradiction. Which means what? हम कोई भी एक point इन दोनों के अंदर लेके चलेंगे. मतलब हम something कुछ गलत assume करके चल रहे हैं. तो at the end we will get some contradiction. तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. इज द आइडिया क्लियर? Yes, sir. ओके सो इफ पॉसिबल लेट अस पिक एन एलिमेंट से x बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन. ओके अब हमने वो एलिमेंट लिया से x कैसा है? x इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है. ओके नाउ टेल मी, what is the meaning of this statement? X belongs to neighborhood around A of length r by 3 intersection with neighborhood around A of length r by 3. No, this is point B. Okay, so can I say that this is same as X belongs to Null set. neighborhood around A of length r by 3 and remember here I am using the word and. X belongs to neighborhood around point B of length r by 3. Can I say in this way? Yes, sir. Yes. Now focus on this quantity. This means what? X belongs to neighborhood around A of length r by 3 means what? Can I say this statement is equivalent to X minus A is less than r by 3? Yes, sir. Yes, so this I can always say. Now why we will say in this way? Because here I am giving you an explanation for it. Okay. See.
we can write neighborhood in this way, that is a minus r by 3 comma a plus r by 3. Okay, which means what? X is lying between this open interval, which is equivalent to say x is between a plus r by 3 and a minus r by 3. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इससे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट a थ्रू आउट दिस इनइक्वालिटी. सो सब्ट्रैक्ट a करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? माइनस r by 3. In the middle we are having x minus a, and on the right hand side we are having x by 3, r by 3. Is it clear? Yes, sir. और इससे तो हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, yes or no? Yes, sir. Here we are using the property, okay? Because Yes, sir. here we are having same number, r by 3 and r by 3. Okay, हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? मॉड ऑफ x minus a is less than r, which is equivalent to say minus r is less than x minus a is less than r. These two statements are if and only if statements. Okay, we are using this property over there. अब clear है? Yes, sir. Okay. Similarly, we can say and x minus b is less than r by 3. Okay, ये clear है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Now what we know about r? We know what we know about r? R is nothing R but what? belongs to an neighborhood of A minus R by B. See, we have already considered this. That is mod of a minus b is nothing but r. Yes or no? You can see here we have already considered what is our value of r. R is nothing but mod of a minus b. Is that clear? Yes, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So r की वैल्यू हमने ऑलरेडी ये कंसिडर की है. Now, can I write this modulus as a minus x plus x minus b? Can I write it in this way? Yes, sir. Yes, sir. Now you combine this first two in one bracket and second in another bracket. So using triangle inequality, I can rewrite it as this is less than or is equals to mod of a minus x plus mod of x minus b. Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. this is using triangle inequality. But what we know about this quantity mod of a minus x? Or first of all, tell me about this quantity. What is mod of x minus b? Observe. Less than R by Less 3. than R. Less than r by 3. And what about mod of a minus x? So वो भी less than R by 3 Less than आएगा R ये ना? minus 3. ये भी लेस देन r by 3 होगा क्योंकि हम मॉडुलस में साइन इंटरचेंज कर सकते हैं. ओके, बाय टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So here what we are having, this is less than r by 3 plus r by 3. यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Now what is r by 3 plus r by 3? 2r 2R by by 3. 3. 2r by 3. 2r by 3. And what we are having on the left hand side? R. R. So here we are having the relation r is strictly less than 2r by 3, which is equivalent to say 3r is less than 2r. Can it be possible? Yes. No, sir. Maybe. Remember, Yes, sir. mod of अगर r r is माइनस r होगा is तो anyway positive number. ओके अगर नेगेटिव होता तो ये पॉसिबल होता, लेकिन आर कैसा है, पॉजिटिव है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो हियर वी आर गेटिंग द कॉन्ट्राडिक्शन. Okay, this is the yes, sir. symbol of contradiction. Okay, so here we are getting the contradiction. Now why we are getting this contradiction? Because here we have assumed that x belongs to this neighborhood. Okay, here we are assuming that x belongs to this neighborhood. So using this assumption, we are arriving at the contradiction. So if this is not true, then what is true? Their intersection has to be the empty set. Is the proof clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can see this is the very interesting property of real number. Or you can cancel r from both the sides, and you can say that 3 is less than 2, but this is not possible, which is a contradiction. Hence our assumption is wrong. This implies what? The neighborhoods around point A of length r by 3 and neighborhood around point B of length r by 3 are disjoint. And remember here A and B be any two arbitrary real number. Thus, for every two distinct real number, there exist disjoint neighborhoods. So this is the very important property of real number known as Hausdorff property. Is the property clear? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट इस प्रॉपर्टी में? Yes, any questions in it? No, sir. Okay, so let's go ahead and see some examples. How we are going to apply this property in examples. Okay, so here is our first example. Find the disjoint neighborhoods of A and B. Now here we are having 4-5 examples, but I am going to do only one example. Okay, so here our value of A is 5 and our value of B is 7. Now remember, our aim is to choose the value of R in such a way that अगर हम 5 के अराउंड R लेंथ का नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे और B के अराउंड R लेंथ का नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट. तो R चूज करना हमारे ऊपर है. हम ऐसा चूज करेंगे कि उनका इंटरसेक्शन, उनके नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो एम्प्टी आना चाहिए. अब देखो हम यही रिजल्ट सर अप्लाई करते हैं. यस, सर रैंडमली चूज कर सकते हैं क्या कोई भी यार? सी आप रैंडमली नहीं चूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, see this is my real line. Here I am having say 0.5. Here I am having 6 and this is my 0.7. ओके, अब हमें 5 के अराउंड एक नेबरहुड फाइंड आउट करना है. मान लो कि मैंने ये लेंथ का एक नेबरहुड फाइंड आउट किया. 7th के अराउंड भी मुझे एक नेबरहुड फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये लेंथ का एक नेबरहुड फाइंड आउट किया. अब देखो दोनों के इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट आ रहे हैं. 6. सी नेबरहुड मीन्स ये रेड वाला पार्ट. Okay, I am talking about this part for 0.5
and this part for 0.7. तो इन दोनों सर्कल के बीच में देखो कोई कॉमन पॉइंट आ रहे हैं? No, sir. No. Which means what? Their intersection is an empty set. ओके अब मान लो कि मैं मेरा नेबरहुड बड़ा बनाता हूं तो क्या होगा? मान लो कि मैंने 5 के अराउंड इतना बड़ा नेबरहुड बनाया. ओके रिमेंबर दिस रेड वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, these are my this is the neighborhood around this 0.5. ओके अब मैं 7 के अराउंड एक अलग कलर का नेबरहुड बनाता हूँ. ओके ग्रीन कलर का मैं 7 के अराउंड एक नेबरहुड बना रहा हूँ. Okay, so this green part represents the neighborhood around 0.7 and this red part represents the neighborhood around 0.5. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब मैं करूंगा तो उसके अंदर कॉमन पॉइंट्स आएंगे या नहीं Yes, आएंगे? sir. Yes, sir. तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा? 7. ये ग्रीन वाला पार्ट होगा, राइट? Yes, sir. Right, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है? No. Okay, so here we can't say that the neighborhood of green part and the intersection of neighborhood of red part is empty. This we can't say because here we are getting their intersection is non-empty. इसलिए हमें R ऐसा चूज करना है कि अगर मैं इसके अराउंड R लेंथ का नेबरहुड बनाऊं और 7th के अराउंड भी R लेंथ का नेबरहुड बनाऊं तो मुझे दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हम R कैसा पिक करेंगे? जैसे कि हमने अभी देखा हमारे प्रूफ में हमने R कैसा पिक किया? हमने पिक किया मॉड ऑफ A माइनस B. ओके तो हमारे प्रूफ में ये R वर्क हो गया. तो आप एक तो इसी लेंथ का R पिक कर सकते हो या फिर आप इस R को और भी छोटा कर दो. सी इसे बड़ा करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर मैंने बड़ा किया तो इंटरसेक्शन में ये ग्रीन वाला कॉमन पार्ट मुझे मिल रहा था. तो हम क्या करेंगे, इस R को पहले तो मॉड A माइनस बी फाइंड आउट करेंगे और फिर इसे और छोटा कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय सम पॉजिटिव रियल नंबर. ओके इसे हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये जो R होगा वो और भी छोटा बन जाएगा. तो डेफिनेटली गारंटी होगी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us understand this property using an example. Okay, अब हम फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं which is mentioned in our problem. A is equals to 5 and B is equals to 7. अब हमें R कैसा पिक करना है? R is equals to mod of A minus B. तो पहले तो हम ये मॉड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज मॉड A minus B? 2. 2. तो जैसे कि मैंने आपको बोला हमें ये R और भी छोटा करना पड़ेगा जिससे कि हम एग्जैक्ट गारंटी दे पाए कि इनके अराउंड जो भी नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे कि तो उनका इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी मिलेगा. तो इसे और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस R को डिवाइड कर देंगे सम पॉजिटिव रियल नंबर. ये आप कुछ भी ले सकते हो बिगर देन 1. ओके हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं. ओके आप कुछ भी पिक कर सकते हो विच इज बिगर देन 1 इन द डिनोमिनेटर. हम यहाँ पर 2 कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या होगा 2/2 विच गिव्स मी 1. सो R की वैल्यू हमें क्या मिली? 1. 1. 1. अब रियल लाइन पे इसे ऑब्जर्व करो. हियर आई एम हैविंग 5, हियर आई एम हैविंग 6, हियर आई एम हैविंग 7. ओके अब 5 के अराउंड मुझे एक
ओपन नेबरहुड फाइंड आउट करना है ऑफ लेंथ 1। तो राइट हैंड साइड में ये कहाँ तक जाएगा? 6. 6 तक। 6 तक। क्या इसमें 6 इंक्लूड होगा? हाँ सर। No, sir. नहीं होगा, बिकॉज हम ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। इज दैट क्लियर? यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक जाएगा? 4. 4 तक। 4 तक। Okay, let me use this red color. Okay, so red color represents neighborhood around 0.5. Okay, तो ये neighborhood मुझे किसका मिला? 5 का मिला 5 ऑफ का। लेंथ 1। अब सिमिलरली हम neighborhood around 0.7 कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब राइट हैंड साइड में हम कहाँ तक जाएंगे? 8. 8। 8। सो हियर वी आर हैविंग दिस पार्ट। और लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक जाना है? 6. 6 तक। क्या इस ग्रीन पार्ट में 6 इंक्लूड होगा? No, sir. नो सर। और 8 इंक्लूड होगा? No. नो। नो। अब देखो इस रेड वाले नेबरहुड में और ग्रीन वाले नेबरहुड में कोई कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं? No, sir. नो सर। अगर आता है तो वो 6 ही आता। राइट, यू कैन सी दिस रेड एंड ग्रीन पार्ट इज ओवरलैपिंग। बट हमने ओपन इंटरवल लिया है तो रेड वाले में भी 6 पॉइंट नहीं आना है और ग्रीन वाले में भी 6 पॉइंट नहीं आना है, विच मीन्स वॉट, देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। इज द आइडिया क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. सी अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा, सर हम इस 6 के बारे में श्योरिटी कैसे बोलेंगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा? तो आप क्या करो, इस डिनोमिनेटर को और थोड़ा बड़ा कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 3 कंसीडर कर रहा हूँ फिर अब। सो हियर आई एम हैविंग 2/3। 2/3 का आंसर क्या आता है? सर 4 कंसीडर करते ना। ओके ठीक है, 4 कंसीडर कर लेते हैं, फिर वो डिवीजन में हमें आसान पड़ेगा, राइट? यस सर। ओके, सो 4 कंसीडर किया, ये क्या आएगा? 0.5, राइट? यस सर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 5 के अराउंड एक 0.5 का नेबरहुड बनाना पड़ेगा। तो अब ये देखो, ये चॉकलेटी कलर का पार्ट जो है, दिस इज द नेबरहुड अराउंड 0.5। ओके, और मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ अराउंड 0.7। तो ये आएगा 6.5 और ये आएगा 7.5। तो ये ब्लू वाला पार्ट होगा नेबरहुड अराउंड 0.7। अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस चॉकलेटी पार्ट एंड दिस ब्लू पार्ट, अगर आप इन दोनों को इंटरसेक्ट करोगे देन देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, यस। sir. तो यहाँ पे आप ऐसा नंबर चूज करना कि आपको इन दोनों के नेबरहुड के इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी। इज द एग्जांपल सर इसको क्लियर? इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। यस। सी ये तो मैंने आपको रियल लाइन पे शो किया है क्योंकि आप विजुअलाइज कर पाओ। सी कैलकुलस जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करते। कैलकुलस सीखना हो तो आपको विजुअलाइज चीजें करनी पड़ेंगी, और लिखना एक अलग थिंग है। वो जब आप टेक्स्ट बुक गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसे लिखते कैसे है। बट माय मेन फोकस इज आप विजुअलाइज करना सीखो। समझा कैसे करना है? यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके, तो अब देखते हैं कि इसे लिखेंगे कैसे। ओके, सो पहले हमें आर फाइंड आउट करना है। सो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज 2। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आर को 3 से डिवाइड किया है। ओके, सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेबरहुड अराउंड 0.5।
तो नेबरहुड की डेफिनेशन a minus epsilon comma a plus epsilon. Here value of a is 5, value of epsilon is 2/3. तो हमें क्या मिला 13/3 कॉमा 17/3. तो ये हमें एक नेबरहुड मिल गया अराउंड 0.5. सिमिलरली हम b के अराउंड एक नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे. हियर द वैल्यू ऑफ b इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ r इज 2/3. सो ये आप आगे जाके सॉल्व करोगे तो आपको ये एक ओपन इंटरवल मिलेगा. अब आपको ये दोनों ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है और चेक करना है वेदर यू आर हैविंग दिस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी और नॉट. अब क्या आप बता सकते हो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? No, sir. ओके सी सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर निग्लेक्ट कर सकते हो. तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा 13 से लेके 17 तक और ये सेकंड वाला होगा 19 से लेके 23 तक. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इनके इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा. हेंस these are nothing but the disjoint neighborhoods of point A and B. Is the idea clear? Yes, sir. तो Yes, इस sir. तरीके से हम लिखेंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड. नेबरहुड बोला मतलब हम वो पॉइंट कंसीडर करेंगे और ये आर की वैल्यू हमें क्या पिक करनी है वो हम इनसाइड दिस नेबरहुड लिखेंगे और उसे हम बोलेंगे दिस इज माय सेट ए. सेम वी आर गोइंग टू डू इट फॉर सेट बी. और ये दोनों सेट कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड हम इन दोनों को ऑब्जर्व करके पता करेंगे देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? सर रिपीट करो ना. सी ओके ठीक है हम एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम उससे रिपीट करते हैं. ओके अब हम इस थेरोटिकल वे से जाएंगे कि हम कैसे शो करें. सी विजुअलाइजेशन के साथ हमें लिखना भी आना चाहिए बिकॉज लिखने को आपको मार्क्स मिलेंगे. So now in the second example, we are having value of a is 3 and value of b is -4. Value of a is 3, value of b is -4. So tell me what about r? First of all, tell me what is the answer of a minus b inside the modulus? 7. 7. 7. अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? आप चाहो तो इसे 7 से भी डिवाइड कर लो क्योंकि फिर यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा तो कैलकुलेशन आसान होंगे. ओके यस. Yes, sir. हमें डिनोमिनेटर में ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर डालना है विच इज बिगर देन 1. तो यहाँ पे 7 था इसीलिए हमने यहाँ इसको 7 से डिवाइड कर दिया. ओके सी अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है उन्होंने r/7 लिखा है. आप चाहो तो r/7 लिख लो नहीं तो फिर आप r को ही डायरेक्टली 1 बोल दो. ओके क्योंकि r हमने क्या कंसीडर किया मॉड a माइनस बी डिवाइडेड बाय 7. आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने r कैसा कंसीडर किया है मॉड a बाय b फिर उसको डिवाइड बाय सम रियल नंबर कर रहे हैं वो. तो आप ऐसा भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा भी कर सकते हो. ओके तो अब यहाँ पे हमें r की वैल्यू क्या मिली 1. अब हम नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे अराउंड पॉइंट a और उसे हम बोलेंगे सेट a. ओके सो नेबरहुड अराउंड पॉइंट 3 ऑफ लेंथ 1. तो इसका आंसर क्या आएगा a minus epsilon a plus epsilon. So here we are having 3 minus 1 and 3 plus 1. Now tell me क्या आना है open 2, interval 2,4. Is it? Yes, sir. Now let us calculate set b. This is nothing but the neighborhood around point -4 of length 1.
तो ये क्या बन जाएगा, -4 a माइनस बी, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन. सो -4 -1 कॉमा -4 +1. So tell me what we are having inside this open interval. -5, -3. -3. -5, -3. तो ए सेट हमारा क्या है, ओपन इंटरवल 2, 4. सेट बी क्या है, ओपन इंटरवल -5, -3. Now observe, can I say A intersection B is empty set? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can clearly see there is no common point in between these two sets. Hence, we can conclude that A intersection B is an empty set. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो. आप चाहो तो बुक में जैसा मेथड यूज किया है उस मेथड से जाओ, या फिर ये मेथड आपको सुटेबल लगे तो आप इस मेथड से जा सकते हो. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो. Okay, now I am giving you one homework. Okay, and I want the answer of this homework in my next lecture. Okay, or let us make it as 4. Okay, my question for you is determine the value of P and value of R, where NPR is equals to open interval 4, 10. क्वेश्चन समझा सबको? Yes, sir. अब ये जरूरी नहीं है कि पी की वैल्यू 4 ही होगी और आर की वैल्यू 10 ही होगी. सी यहाँ पे बाहर हमने एन लगाया है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने एन नहीं लगाया है. अगर हम राइट हैंड साइड में भी एन लगाते देन इन दैट केस दिस विल बी ट्रू. यहाँ पे आप नेबरहुड की डेफिनेशन यूज करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इसका आंसर चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. Okay, I will randomly call your names and I will ask what is the answer of P and R to anyone. Okay, बुक में देखो उन्होंने R/3 पिक किया है, दैट इज 7/3. उससे आपके कैलकुलेशन थोड़े बड़े हो जाएंगे. If you want you can do it in this way also. At the end our aim is we need to get this intersection as an empty set. Is the Hausdorff property clear? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट इसमें? Okay, so let's go ahead. Okay, now I am leaving the remaining examples for your homework. Okay, and you please go through this example number 3, example number 25, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब 3 पॉइंट्स है. ओके, 3 पॉइंट्स है तो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे. पहले 2 पॉइंट को कंसीडर करोगे, उनका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करोगे. बाद में बी और सी को कंसीडर करना है, फिर ए एंड सी को कंसीडर करना है. फिर आपको आर कैसा पिक करना है, मिनिमम ऑफ ऑल दिस 3 मॉडुलस. ओके, इन तीनों वैल्यू में से मिनिमम जो भी होगा उसे आप एज अ आर पिक करोगे. सो यहाँ पे देखो मिनिमम क्या है, 0.65. और आप इस आर को क्या करोगे, बाद में डिवाइड बाय 3 कर दोगे. तो आपका नेबरहुड ऑफ लेंथ 65/300 होगा अराउंड दिस पॉइंट, अराउंड दिस 3 पॉइंट्स. Okay, so you please go through this example and let me know whether you have understood this example or not in my next lecture. Okay, now we are moving in the interesting
result, or you can say the very beautiful property of real numbers. That is, now we are talking about bounded sets in R. दैट इज रियल नंबर के सेट में बाउंडेड सेट्स होते हैं या नहीं होते, और होते तो कौन से होते हैं और कौन से सेट्स बाउंडेड नहीं होते. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दिस आर. व्हाट इज योर गेस? कैन आई से द सेट ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड? बाउंडेड से आपको क्या समझ में आता है? यस, कुछ नहीं समझ में आ रहा? एटलीस्ट यू कैन गेस. बाउंडेड से आप क्या बोल सकते हो? जैसे कि हम नॉर्मल वे में बोलते हैं, अपने लिमिट में रहे, लिमिट क्रॉस मत कर. ओके, और अपने बाउंड में रहे, बाउंड क्रॉस मत कर. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? Boundary. So you can consider bounded as boundary also. So first of all, let us guess. According to you, what you can say about this set of real number? Is it bounded or not? Someone you had said boundary. तो क्या सेट ऑफ रियल नंबर के लिए कोई बाउंड्री है हमारे पास? यस. ओके ठीक है, पहले हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं, बाद में हम ये डिस्कस करेंगे सेट आर बाउंडेड होगा या नहीं होगा. ओके, सो प्लीज अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन केयरफुली. लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. हम सेट ए कैसा पिक कर रहे हैं? Yes, how we are picking this set A? Non-empty subset of R. Okay, non-empty means set A में कुछ न कुछ members present रहेंगे. और इस set A को हम क्या बोलेंगे? This set A is said to be bounded above. Okay, मतलब ऊपर से bounded होगा. Set A is said to be bounded above if there exists a real number, say M, belongs to R such that x is less than or is equals to M for all x belongs to A. समझा कुछ? यस, कुछ समझा? नो सर. व्हाट अबाउट अदर्स? कोई है जिसे समझा? थोड़ा बहुत तो समझा? सी, पहले हमने क्या पिक किया? हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर पिक किया. ओके, और उस सेट को हम क्या बोल रहे हैं? दिस सेट इज बाउंडेड अबो, मतलब ये ऊपर से बाउंडेड होगा. इफ देर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू r, m मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सच दैट x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. नाउ व्हाट इट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a? मतलब हम a कोई भी जो सेट कंसीडर कर रहे हैं उसमें से आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो.
आपको वो सारे पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर से छोटे ही मिलेंगे। अब समझा थोड़ा बहुत? Yes, sir. क्या समझा? सी, आप जब तक मुझसे कन्वर्सेशन नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं एकदम 4G के स्पीड में हमारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। अगर आप चाहते हो आपको अच्छे से समझ में आए, देन यू नीड टू व्हाट यू कैन से, आपको मेरे से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल से समझाइए ना। हाँ, वो तो मैं समझाने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। ओके, अभी भी याद रख लो, बिकॉज दिस वी विल नीड इन एग्जाम्पल्स। कोई भी सेट ए होगा वो बाउंडेड अबो कब होगा? जब एक ऐसा रियल नंबर m एग्जिस्ट करे सच दैट x is less than or is equals to m for all x belongs to this set A। सेट A में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर m से छोटे या फिर बराबर होने चाहिए। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमें एक रियल नंबर का सबसेट लेना है। सो लेट मी पिक 0, 2। Can I say this is the non-empty subset of R? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब रियल लाइन पे ऑब्जर्व करो। दिस इज माई पॉइंट 0, दिस इज माई पॉइंट 1 and this is my point 2, and we are considering this open interval। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ इस ओपन इंटरवल में कितने पॉइंट्स आते हैं? Infinite. एग्जैक्टली इनफाइनाइट। नहीं तो कोई बोलेंगे सर 2 या 3 नहीं तो एक ही आ रहा है, ये 1 ही आ रहा है। रिमेंबर दिस इज एन ओपन इंटरवल। ये पिछले लेक्चर में आप में से किन्हीं लोगों ने बोला था। रिमेंबर, ये जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो 0 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट इस ओपन इंटरवल में आते हैं। ओके, अब हमें एक रियल नंबर m पिक करना है। ओके, m पिक करना है विच बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट आप इस सेट A में से कोई भी पॉइंट पिक करो, वो पॉइंट ऑलवेज, उस पॉइंट को मैं x बोल रहा हूँ। ओके, आप उस सेट में से कोई भी एक x पॉइंट पिक करो, वो ऑलवेज कैसे रहना चाहिए? लेस देन और इज इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A मीन्स व्हाट? आप इस ओपन इंटरवल में से कोई भी पॉइंट पिक कर लो, आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? वो जो पॉइंट होगा वो इस रियल नंबर m से हमेशा छोटा या फिर m से बराबर होना चाहिए। तो कोई मुझे बता सकता है मैं m की क्या वैल्यू चूज करूंगा सच दैट इसके सारे पॉइंट्स उस पर्टिकुलर नंबर से छोटे ही रहेंगे? यस। क्या मैंने m इज इक्वल्स टू -1 पिक किया तो क्या मैं बोलूंगा -1 इस सेट के सारे पॉइंट्स -1 से छोटे हैं? No, sir. No, sir. नो, सो हम -1 नहीं ले सकते। -2 लिया तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? No, sir. नो, तो माइनस वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं। यहां तक समझा? Yes, sir. अब क्या होगा जब मैं +1 कंसीडर करता हूं? क्या मैं बोल सकता हूँ इस सेट के सारे पॉइंट्स इस +1 से छोटे या फिर इसके बराबर है? No, sir. नो सर। नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेट में 1.5 या 1.11111 ये सारे पॉइंट्स भी आ रहे हैं जो कैसे हैं 1 से बड़े हैं। तो क्या 1 वर्क करेगा यहाँ पे?
No, No, sir. sir. नो। तो कौन सा नंबर वर्क करना चाहिए? अब बताओ, एनी गेसेस? 2. 2 or greater than 2. 2 या फिर 2 से बड़े वाले सारे नंबर्स वर्क करेंगे, राइट? Yes, sir. सो 2 के लिए क्या होगा? पहले तो बताओ, इस सेट में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? No, sir. नो। नहीं। So 2 doesn't belongs to this set A. And you can see, if you pick any point inside this interval, then you will always get that point x is always less than or is equals to 2. In fact, I can say something more, this point x is always strictly less than 2. Okay, because इस सेट में 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सेट के आप कोई भी x पिक करो, वो ऑलवेज कैसा होगा? लेस देन 2। और ये ट्रू होगा सारे x के लिए। सारे x कहाँ पे बिलोंग करेंगे? सेट A में बिलोंग करेंगे। इज द आइडिया क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब समझे डेफिनेशन व्हाट इज बाउंडेड अबो? Yes, sir. और लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, x is always less than or is equals to m for every x belongs to A। और ये हमने बोला है देयर एग्जिस्ट m। ओके, कुछ हमें कम से कम एक तो m ऐसा मिलेगा सच दैट उस सेट के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस m से छोटे या फिर बराबर होंगे। अब मैं आपको सम एग्जांपल्स देता हूँ और उनमें से आप मुझे बताओगे कि उनके लिए अपर बाउंड क्या होगा और बाउंडेड अबो क्या होगा। सो हियर इज माय सेट ए। हियर इज माय सेट बी। हियर इज माय सेट सी। ओके, अब पहले ए के बारे में बात करते हैं। यस, ए किससे बाउंडेड अबो होगा? डिफिकल्ट लग रहा है? ठीक है, चलो फिर पहले बी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो बी के लिए कौन सा एम वर्क करेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? 7 or greater than 7. 7 और ग्रेटर देन 7। हम 7 ही लेकर चलते हैं क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या बोला? x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे ये इक्वल भी है और लेस देन भी है। ओके, हम सेट का ही कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं। सो कैन आई से दिस सेट b इज बाउंडेड अबो? Yes, sir. yes, and here the value of m is 7। अब आते हैं सेट a पर। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी? 2. 2. In this case we are having the value of m is 2 because आप इस सेट A में कोई भी पॉइंट उठाओ, वो पॉइंट आपको ऑलवेज कैसा मिलेगा? आइदर लेस देन 2 और इज इक्वल्स टू 2। इक्वल्स टू 2 कब आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये 2 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है इन माय सेट A। तो जब आप 2 कंसीडर करोगे देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ m हैज टू बी 2, otherwise it is less than 2। is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sure. set A is bounded above. Similarly, set B is also bounded above. Now observe this set C. What is the value of M? Infinity. Infinity के बारे में आपको पता है क्या होता है infinity? So uncountable numbers होते हैं, मतलब जिसका end नहीं होता। Okay, uncountable पढ़े आपने? What do we mean by uncountable sets? नहीं सर, मैंने बस एक्सप्लेन किया कि इन्फिनिटी ओके मतलब सी, इन्फिनिटी आपने तक अभी तक नंबर हम काउंट नहीं कर अनकाउंटेबल सकते। आपने अभी तक अनकाउंटेबिलिटी पढ़ी नहीं है, इसके लिए मैंने इन ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल्स को अनकाउंटेबल या काउंटेबल नहीं बोला। हम खाली इनफाइनाइट बोल रहे हैं अभी तक।
क्योंकि मुझे पता है आपने वो अभी तक पढ़ा नहीं है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा जो भी डिफिकल्ट वर्ड रहते हैं वो मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता। ओके, ये बराबर है कि तीनों के तीनों सेट्स अनकाउंटेबल है, लेकिन वो आप आगे जाके सीखोगे इन योर सेकेंड सेमेस्टर इन अलजेब्रा। ओके, इसीलिए मैं वो चीज़ें यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने उनके बारे में अभी तक सुना नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, सेट सी कैसा है, हमारे पास एक रियल लाइन है जिसमें ये स्टार्ट हो रहा है 5 से, लेकिन इसका कोई एंड है क्या? नो सर। नो, मतलब ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। मान लो कि मैंने आपको बोला ये 7 तक जा रहा है। ओके, तो आप बोलोगे नहीं सर ये 7 तक नहीं जाता, यहाँ पर इन्फिनिटी है, मतलब हम 7 से बड़ा वाला नंबर भी ले सकते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 8 तक ही जाएगा? आप फिर से बोलोगे नहीं सर ये 8 तक नहीं जाने वाला, ये इन्फिनिटी है, ये ना 8 से बड़ा होगा, तो क्या मैंने बोला कि चलो मान लो ये 9 तक ही जाता है, तो आप क्या बोल सकते हो, नहीं सर ये 9 तक ही नहीं जाएगा, ये आगे भी जाएगा? यस और नो? यस। यस सर। मीन्स इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। ओके, दिस इज जस्ट द सिंबल, विच मीन्स वॉट, हमें इस केस में कोई भी वैल्यू ऑफ m ऐसी नहीं मिलेगी कि सच दैट every point inside this interval which is less than some m. ओके, अगर आपने बोला कि आप m की वैल्यू 100 ले लो, तो मैं इस इंटरवल में 101 इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको ये नहीं मिलेगा कि 101 इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू 100। दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपने m की वैल्यू 1000 ले ली तो मैं 1001 कर दूंगा। समझ रहे हैं आपको? यस सर। इसके लिए जब भी आपको कहीं पर एट द एंड इंफिनिटी मिली तो आप बोलोगे दिस इज नॉट बाउंडेड अबो। इज दैट क्लियर? यस सर। So this is the definition of bounded above sets. Similarly, you can define bounded below sets. Okay, a set A is said to be bounded below if there exists a real number say m belongs to R such that, अब क्या होगा, अब हमें मिलना चाहिए ये जो वैल्यू ऑफ m होगी, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मीन्स ये जो ऊपर हमने बोला उसका उल्टा अब हमें कंसीडर करना है। फिर से हम उन्हीं सेट्स के बारे, क्या ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है या समझ में आ गया सबको? चलो हम एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उससे ये ज्यादा क्लियर होगा। रिमेंबर, a set A is said to be bounded below if there exists a real number m such that m is less than or is equals to x for every x belongs to this interval A। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने कौन सा इंटरवल कंसिडर किया था? ओपन इंटरवल 0,2। ओके ठीक है, हम ये सेम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ओके, a इज इक्वल्स टू 0,2। ओके, हमें एक ऐसा रियल नंबर चाहिए, लेट अस कॉल इट एज स्मॉल m such that this m is always less than or is equals to x for all x belongs to A। मतलब क्या, आप इस ओपन इंटरवल में से 0 से लेके 2 तक के बीच में से आप कोई भी ऐसा पॉइंट पिक कर लो, आपको ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट इज m इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू x। मान लो इस स्मॉल m की वैल्यू अगर मैं 3 कंसिडर करता हूं, then can I say 3 is always less than or is equals to x for every x in A? नो सर। नो No, सर। क्योंकि A के बीच में 0 से लेके 2 तक के पॉइंट्स आ रहा है और ये 3 फिर इनसे बड़ा हो जाएगा, सो दिस 3 won't work here। What happens if I pick 2 instead of 3?
Will it work? No, sir. 2 also won't work, क्योंकि इस इंटरवल में 2 से छोटे ही पॉइंट्स आ रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 2 इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x इनसाइड a. सो 2 भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. व्हाट अबाउट 1? No, इज sir. 1 वर्क? No, sir. 1 भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अगर ये 0.5 पिक किया तो मुझे क्या मिलेगा? 1 इज बिगर देन 0.5. तो यहाँ पे ये 1 भी सुटेबल नंबर नहीं है. सो और कौन सा चूज कर सकते हैं हम? क्या 0 चूज कर सकते हैं? Yes, sir. यस. इन दिस केस हमें क्या मिलेगा? 0 इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. ओके, आप इस इंटरवल को भी देख लो. इस इंटरवल में 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो आपको मिलेगा वो पॉइंट ऑलवेज कैसा होगा? बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 0 से. इनफैक्ट in this case that point is always bigger than 0. Is it clear now? Yes, sir. So in that case we are going to say this set is bounded below. इस केस में हमें क्या मिला था? ये सेट कैसा था? बाउंडेड अबो था, राइट? और इस केस में हमें ये कैसा मिला? दिस इज बाउंडेड बिलो. So a set which is bounded below as well as bounded above, that set is called as bounded set. Okay, that is our next definition. लेकिन इसके पहले हम और थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख ले, जिससे कि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. हम फिर से इन 3 एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. पहले तो आ जाओ इस सेकेंड एग्जांपल पे, दैट इज द सेट बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर दिस सेट बी? 2. 2. और 2 सेकेंड सेट में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा? Yes, sir. Yes, so 2 belongs to the set B. Now let us come on this set C. What is the value of small m? 5. 5. Okay, so you can see in previously we have concluded that this set C does not have an upper bound, or you can say bounded above. But now it is bounded below, because every point inside this set C is always bigger than or is equals to this number 5. What about this set A? Is it bounded below? No, sir. No. ओके, यहाँ पे हम कोई भी m के वैल्यू के बारे में बात नहीं कर सकते सच दैट that value is always less than or is equals to x, because we know that this infinity is just the symbol and it is a very huge number. ओके, तो अब हमें क्या पता चला? ये सेट A कैसा है? बाउंडेड अबोव है, बट बाउंडेड बिलो नहीं है. ओके, बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड अबोव है. दिस इज फॉर सेट A. What about set B? Set B is bounded above as well as bounded below. What about set C? Set C is, can I say set C is bounded above? No, sir. No, sir. So this is not bounded above. Can I say it is bounded below? Yes, sir. Yes, so this is bounded below. अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी बाउंडेड सेट. ओके, बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट A is said to be bounded if it is both bounded below as well as bounded above. तो इस केस में ये दोनों कंडीशन कौन सा सेट सेटिस्फाई कर रहा है? Set B. सेट B. So here this set B is bounded set. Is the definition clear now? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so here we are having that definition. A set A is said to be bounded set if it is both bounded above as well as bounded below. In other words, A is said to be bounded set if there exists a real number small m and capital M such that m is less than or is equals to x and x is less than or is equals to m, and this is true for all x in R. It is not for all x in R, it is for all x in A. ओके यहाँ पे करेक्शन करना. ओके हमने क्या किया, ये फर्स्ट टू कंडीशंस है, ये दोनों हमने यहाँ पर कंबाइन कर लिया क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, हमें x ऐसा पिक करना है जो स्मॉल m से बड़ा हो, और फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, हमें ऐसा x पिक करना है जो कैपिटल M से छोटे हो. तो वो दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर ही कंबाइन कर लिया. So a set A is said to be bounded if it is both bounded above as well as bounded below. Is the definition clear now? Yes, sir. Okay, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको मुझे बताना है उसमें से बाउंडेड सेट्स कौन से हैं. ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे. Okay. Here I am writing bounded above, below, and here I am writing bounded. Now tell me about the first set. Bounded. First of all, tell me, can I say this set A is bounded above? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Can I say it is bounded below? Yes, Yes, sir. So if it is both bounded above as well as below, then that set is bounded. What about second one? Yes, sir. Bounded. Yes, sir. sir. Bounded above. So this is also bounded. What about third one? Bounded. Yes, sir. It is also. This is also bounded. What about fourth one? Bounded above. This is bounded above. Can I say it is bounded below? No, sir. No, sir. No. So it is not bound. It is not bounded. What about set E? Bounded below. Bounded. This is bounded below but not above. Hence it is not bounded. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. What about set F? Not bounded, sir. This is not bounded. Can I say it is bounded below? No, sir. No. Can I say it is bounded above? No, sir. No, sir. No. So here we are having a set F which is neither bounded above nor bounded below. Hence it is not bounded.
अब ऑब्जर्व करो ये सेट F कौन सा है? This set is which set? Minus infinity to infinity. Yes, Real numbers. this is exactly our real number, set of real number. अब मुझे आंसर करो, कैन आई से सेट ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड? No, sir. No, sir. No. So here we are concluding in this lecture that the set of real number is not bounded. Is it clear now? Yes, sir. So here we are, see here we have beautifully constructed this kind of things, and at the end we are concluding that the set of real number is not bounded. Okay, so this is the important result for today's lecture. Okay, so it's 3:46 now. So here, let me stop. Now all of you please go through this definition once again at your home and let me know whether you are having any difficulties in it or not. After that, we are going to see these remarks in my next lecture. Okay, so let me stop here. Now, do you want to ask any questions? No, sir. Okay, so I hope you enjoyed this lecture.